history, diverse population, magnificent culture, and great achievements were set in motion on the 12th of March 2021, which started a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on the 15th of August 2023. Swarnim Vijay Varsh is another initiative of the Government of India to commemorate the 50th anniversary of India's victory in the 1971 war. The Swarnim Vijay Varsh celebrations began by the lighting of the victory flame on the 16th of December 2020. The victory flame was lit from the eternal flame of the National War Memorial, signifying the bravery of the soldiers of the war. Since then, the victory flame has travelled across the length and breadth of India, and a large number of commemorative events were conducted during the journey. आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इनके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास मनाने के लिए है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील सभी चीजों का एक अवतार है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जब हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75वें सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी। Ladies and gentlemen, this is a precautionary announcement for all of you. Because of the very heavy winds, you are requested not to go towards the edge of the ship. रोमांच के ये क्षण निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में रक्त के प्रवाह को उसने बढ़ा दिया होगा और हमारे नौसैन्य शक्ति को निश्चित तौर पर उस पर भरोसा और बढ़ गया। और शायद इसीलिए ये कहना होगा, नौसैनिक तुझे नमन, ओ सागर के शूर शुभ्रताधारी प्रहरी, तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। आदित्य सिंधु का भरता तुझ में धीर, अदम्य उम्मीद किरण, सागर की वो अडिग शिलाएं कंपित होती तेरी हुंकारों से। सुनाती पवन वीर गाथा तेरी, सुरभित तुझ में ही वतन चमन। वीर सैनिक तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। To be secure on land, we must be supreme at sea. Quoting one of the former prime ministers, and Indian Navy, Indian Coast Guard, our entire maritime strength continues to not only live this quote, but also the fleet review that you see on your screen, the 12th edition of the President's Fleet Review. It's worth mentioning here, OP and Shivendra, this symbolizes their loyalty, their allegiance to the nation, protecting the sovereign boundaries of the nation, sovereign waters of the nation, and also to strengthen bonds between the sailors and the state. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes. The changes were seen both in structure and also on operational front. It also reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces. And once again to recall, as we see the Indian tricolour fluttering high, leading from the front from INS Sumitra. And now let's shift our focus to some more vessels on your screen as you watch the live and uninterrupted broadcast of 12th President's Fleet Review. So,
Just to tell our viewers, the fleet reviews in India have been traditionally held in the Western Seaboard, but post 2016 it changed. 2016 was a massive show of strength on the East Coast, and now this being the 12th edition, only growing. इस पंक्ति में अब है भारतीय नौसेना पोत बत्तीमाल पेनेंट नंबर टैंगो 67 के कमान अधिकारी हैं कमांडर संतोष कुमार ठाकुर। The third ship in the mobile column coming ahead is INS Bangaram with pennant number Tango 65, commanded by Commander Guru Prasad Patil. चौथा पोत पेनेंट नंबर टैंगो 68 भारतीय नौसेना पोत बराटांग है। भारतीय नौसेना पोत बराटांग के कमान अधिकारी हैं कमांडर अनूप सिंह रावत। बारहवां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर, जिसके तहत अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि 4 जो पोत थे वो प्रेसिडेंट यॉर्ड उनके सामने से गुजरा, और चौथा जो जलियान INS बारातंग था जिसके कमान अधिकारी थे कमांडर अनूप सिंह रावत। और ये हल्के सशस्त्र जलियान भारत की तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी ने कहा है तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यही भावना आज सभी नौसैनिकों के मन में परिलक्षित हो रही है इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान, जब उन्होंने देश की सर्वोच्च सेनाओं के सशस्त्र कमांडर, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को स्मार्ट सैल्यूट किया, 3 जय के साथ उनका अभिवादन किया। प्रथम पंक्ति में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित। राष्ट्रपति महोदय जो कि जिनके कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार ये सुअवसर आता है, स्वर्णिम मौका आता है जबकि प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन होता है, और हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में ये परंपरा आज बड़े गौरव, गर्व और बड़े आकर्षक तरीके से निभाई जा रही है विशाखापट्टनम में, जो कि नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहें तो ये आज़ादी का अमृतकाल है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद आज़ादी के अमृतकाल, जहां उम्मीद यही है, संकल्प और सिद्धि का पूरा सफर यही है कि हम कुछ नया लिखें, हम एक नया इतिहास, नया भविष्य लिखें। नौसेना अपनी पूरी गरिमामय इतिहास के बाद नया इतिहास लिखने को तत्पर दिखती है। नौसेना जिसने आज यह हमारे सामने रखा कि जितना गौरवमय इतिहास और वर्तमान हमारी सैन्य बलों का है, भविष्य उतना ही गौरवमय होगा। और इसी भरोसे को एक बार फिर से आज इस फ्लीट रिव्यू के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। मुझे याद आता है 75 वर्षों का
नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो हमें उत्साहित करता है। नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो 75 वर्षों का सफर तय कर चुका है, जहां हम शुरुआत में ही आजादी के तुरंत बाद हमें युद्ध का सामना करना पड़ा, जहां हमारी नौसेना का पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी। हमने दुश्मन को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि अपनी क्षमताओं को दिन ब दिन आगे बढ़ाते रहे। हमें याद आता है 1965 का वो भारत पाक युद्ध, जहां पे भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया। हमें याद रखना होगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का और उस दौरान ऑपरेशन ट्राइडन, जिसने कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया। और उस वक्त जो पूर्वी पाकिस्तान है, वहां इस तरह की ब्लॉकेड की, इस तरह से घेराबंदी हमारे नौसेना ने की कि पाकिस्तानी सेना टस से मस न हो सकी, आपूर्ति श्रृंखला नष्ट हो गया और नतीजा 16 दिसंबर 1971 को हमने एक अभूतपूर्व विजय हासिल की। हमारे सैन्य बलों ने भूगोल बदल डाला दुनिया का, और उस स्थिति को, उस जीत को, उस महाजीत का आज हम जश्न मना रहे हैं स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पर। और आज नौसेना अपने उस गर्व को याद रखती है। हमें याद आता है कारगिल युद्ध 1999 का, जहां ऑपरेशन तलवार के जरिए हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराया और जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Viewers, we have crossed the last ship in President's Fleet Review 2022, and shortly the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, will be addressing the fleet. And we once again take this opportunity to recall Indian Navy's glorious past, its legacy. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes, several major challenges as well, which were seen both in structure and also on the operational front. It then reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces, that's the President of India. The maiden review of the Indian composite fleet was taken by our first Honorable President, Dr. Rajendra Prasad, on 10th October 1953. Dr. Rajendra Prasad on 10th October 1953, and since then our maritime strength has never ever looked back. Something which started with the review of total of 30 ships and 6 aircrafts. They were reviewed in a display of might by the nascent Indian Army then. And as we bring to you the live visuals of the 12th review by the Honorable President of India, it's worth mentioning here that this is the third time that a review is being conducted on the east coast of India, here in Visakhapatnam, with the last edition being the 2016 International Fleet Review. It's history in making, multitude of significance attached to the event, and we all are part of this history in making. In this edition, the President reviewed almost 60 vessels, included more than 50 aircrafts. And this being the 12th Fleet Review also has a special significance, dear viewers, as it is also being conducted on the occasion of the 75th anniversary of India's independence, being celebrated across the nation as Azadi Ka Amrit Mahotsav. The Supreme Commander of the Armed Forces reviewed the naval fleet, comprising over 60 ships and submarines and 55 aircrafts.
INS Sumitra also, we saw how it sailed through 44 ships lined up at an anchorage of Vishakhapatnam. We saw the combination of ships from Indian Navy as well as Indian Coast Guard, from SCI and Ministry of Earth Sciences participating in this mega event. निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय के तौर पर दर्ज किया जाएगा और इसके अपने कई मायने हैं। हमने दीदार किया, हमने उन क्षमताओं को देखा, चाहे वो आईएनएस विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर हो, चाहे वो आईएनएस वेला पनडुब्बी हो, चाहे वो आईएनएस दिल्ली हो, आईएनएस सुजाता, आईएनएस कमोता हो। इनका नाम बार बार हमारे जुबान पर आता है क्योंकि ये नौसेना की क्षमताओं को सिर्फ नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने युद्धपोतों का निर्माण खुद अपनी क्षमता के बल पर कर रहे हैं और इस क्षमता तक पहुंचने में हमें एक लंबा वक्त लगा है, लेकिन अब हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज जैसा कि आईएनएस विशाखापट्टनम हमारे नवीनतम डिस्ट्रॉयर में से एक है, जिसे पिछले साल ही नौसेना में कमीशन किया गया, उसमें ये क्षमताएं हैं जिसमें हमने देखा 75% से ज्यादा तमाम सामग्री स्वदेशी है जो हमारी क्षमताओं को सामने रखती है। आज हम अपने बल पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। आईएनएस वेला उसका एक उदाहरण जिसका दीदार भी हमने किया, पूरी दुनिया ने किया। We also saw the Honorable President reviewing the Indian Naval Air Arm in a display of spectacular flypast by several helicopters and fixed-wing aircraft. In the final stage of the review, we saw how a mobile column of warships and submarines steamed past the presidential yacht. Rare display also showcased the latest acquisitions of the Indian Navy. Furthermore, several enthralling waterfront activities that you saw live on your screens a while back, including parade of sails, colorful sails. We saw search and rescue operations, live demonstrations at seafront. We also saw aerobatics by our Hawk aircrafts and water para-jumps by the elite marine commandos. All that brought to you live and exclusively by Doordarshan cameras, spread across Bay of Bengal on vantage positions, which also included 5 ships, hilltops, and much more. दूरदर्शन देश के लोक प्रसारक की भूमिका में सदैव तत्पर रहा है, मुस्तैद रहा है और आज का दिन 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का मौका बंगाल की खाड़ी में नए आयाम स्थापित करता हुआ, अगर हम इस महाआयोजन के आप तक दृश्य पहुंचाने और सुचारू प्रसारण की बात करें तो, और 5 जो जहाज हैं उन पर खास तौर पर कैमरे लगाए गए, आईएनएस ज्योति, आईएनएस निरूपक, आईएनएस कमोरता, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस जलाश्व पर, जहां से न केवल प्रेसिडेंट यॉट के दृश्य आपको दिख रहे थे, बल्कि प्रेसिडेंट यॉट पर जो कैमरे लगाए गए थे उनसे उन सभी पोतों का अवलोकन माननीय राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, जिन पर डेक पर कैडेट मौजूद थे और जो पूरे गौरव के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को 3 जय के साथ, जय घोष के साथ उनका अभिवादन कर रहे थे। और माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कभी मुस्कुरा कर, कभी गर्व के साथ, गौरव के साथ उनके स्मार्ट सैल्यूट का जवाब दिया। और निश्चित तौर पर एक बहुत ही गौरवशाली अवसर है भारतीय नौसेना के लिए। और अगर हम कुछ कवि के शब्दों में उसे व्यक्त करें तो कहा जा सकता है कि कुछ नशा देश की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के अवाम का है। तो ये है मौका 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का, जो हमारी रगों में रक्त के संचार को तीव्र कर देता है और देश प्रेम की भावना को चरमोत्कर्ष पर ले जाने में सहायक है। आईएनएस सुमित्रा अपने गंतव्य स्थल की ओर अग्रसर है और हम उसके ठीक आगे देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल कॉलम में T-39, T-40 तीव्र हमलावर पोत, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सौरभ कुमार और लेफ्टिनेंट चिन्मय अविनाश कुलकर्णी। आईएनएस सुमित्रा की कमान संभाली है कमांडर आशीष मित्तल ने। INS Sumitra presidential yacht on your screens
indigenously designed naval offshore petrol vessel built at Goa shipyard, commissioned in 2014. Accomplishing several successful missions in her service life, and the most notable worth mentioning anti-piracy patrol in Gulf of Aden in 2015, wherein she was diverted for Operation Rahat. Operation Rahat, a non-combatant evacuation operation in war-torn Yemen. INS Sumitra is presently commanded by Commander Ashish Mittal. INS Sumitra is also, as we see, is being led by Fast Attack Craft Tango T-39 and T-40, followed by Indian naval ships Sumedha and Savitri, all of which are offshore petrol vessels like INS Sumitra. Together on your screens, they form the presidential column. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय फ्लीट रिव्यू के बाद अब डॉकिंग के लिए नौसेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय तक पहुंचते हुए। और ख़ास बात यह है कि जब आप शिवेंद्र और सकल जब आप नौसेना के पूर्वी कमान का दौरा करेंगे, देखेंगे, तो एक जो पंक्ति है वो बार बार आपकी नज़रों से गुजरती है। वो पंक्ति है हर काम देश के नाम, यानी पूरा समर्पण देश की सुरक्षा के लिए। और शायद इसीलिए मैं ये पंक्तियां ज़रूर दोहराना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। और आप ये तस्वीरें देखिए, बेहद मनमोहक तस्वीरें। एक साथ मंदिर, मस्जिद और चर्च आपको दिखेंगे। भारत के सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल। और वो इसलिए खास है क्योंकि हमारे सैन्य बल भी हमारे सर्वधर्म समभाव की जीती जागती मिसाल हैं पूरी दुनिया में। और हमारे भौगोलिक परिदृश्य, हमारे जो तमाम विशाखापट्टनम में स्थित जो तमाम इमारतें हैं, जो पूजा स्थल हैं, आराधना के स्थल हैं, वो भी इसी बात को सामने रखते हुए। और सामने आप देख रहे हैं HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वो तमाम स्ट्रक्चर्स, वो तमाम ढांचे जहां पे नौसेना की शक्ति का एक तरह से निर्माण होता है, युद्धपोतों का निर्माण होता है, वाणिज्यिक पोतों का निर्माण होता है। मैं कुछ पंक्तियां जरूर ऐसे मौकों पे गर्व से भरी जो पंक्तियां, जो कार्य, जो गतिविधियां हमने देखी हैं, जिसको परिभाषित करती हैं। ये पंक्तियां कहती हैं कि जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पर जो अपने अभिमान किए जाते हैं, मां है ये मेरी, इसे छू ना पाए कोई भी। मां को देकर खून मां का मान किए जाते हैं। चीर के देखो हर एक सीने में एक ही रंग है, जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। और शायद इसलिए नौसेना कहती है हर काम देश के नाम। Har Kaam Desh Ke Naam. And OP and Shivendra and Captain Shyam Kumar, there seems to be absolutely no doubt that the 21st century is the and will be the century of the seas for India, and that the seas will remain a key enabler in her global resurgence. And this is the history in making, the story of India's growth, its global resurgence, especially in the context of strategic maritime might and prowess. As we speak, for this, the Indian Navy remains all-time combat ready, credible, cohesive, and future-proof force. In fact, as I also get in some remarks by Captain Shyam, we have seen the last decade how it has witnessed India's dependence and reliance on her maritime environment, which we have seen expanding substantially as her economic, military, and technological strength has grown multifold. Her global interactions have widened, and her national security imperatives and maritime security interests have stretched gradually beyond the Indian Ocean region. And what we see on our screens, viewers of Doordarshan, is the live example of India's maritime strategic might. The maritime strength of the country is backed up by the port trusts, the shipbuilding strength, and today we are proud to display the might of shipbuilding capabilities of the country. Sumitra, Sumedha, Savitri, Vishakhapatnam, Sayadri, Satpura, Shivalik, corvettes,
LSTs, tankers, and the aircraft carrier in making at Cochin Shipyard Limited, the Hindustan Shipyard Limited, the Mazagon Dock Limited, GRSC, all this is backing up the strength of the maritime capabilities of the country. The Indian Navy today, more than 150 vessels, 300 aircraft, and 67,000 plus active personnel is gearing up to take challenges at far-flung areas at sea. Indian Ocean is being visited by many navies. The Indian Navy, with its diplomatic reach and the concern for the security of the islands and the choke points, strategic areas of interest, is day by day growing for taking a posture which will be befitting our interests tomorrow. The exercise Malabar, the exercise Milan, which is going to take place at Visakhapatnam just 2 to 3 days from now, are all indicative of these developments. Today, we see Navy operating in the sea lift capabilities. We see projection capabilities. We see it as a HADR, disaster relief operations in areas of interests, and nuclear deterrence as the third strike capability or nuclear trident. So we have grown from strength to strength, and I think today the nation has seen the might of the maritime strength of the country in terms of Indian Navy, the Shipping Corporation of India, the Coast Guard ships, and the strength of ports, harbors, and the shipbuilding industries. भारतीय नौसेना जिसने 75 वर्षों का जो समय रहा है उसमें तमाम नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो युद्ध के समय की स्थिति हो या युद्ध से परे की स्थिति हो, चाहे वो राहत या बचाव अभियान हो, या फिर अगर आधुनिकीकरण की बात की जाए और उसमें स्वदेशीकरण का समावेश हो, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, उसे मूर्त रूप देने की बात हो, भारतीय नौसेना ने हमेशा ही सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अग्रणी भूमिका निभाई है। विशाखापट्टनम जो कि मेजबानी कर रहा है 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की, ये बेड़ा समीक्षा प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अब अपने अंतिम चरण में, पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, और अब इस समय स्थल सीमा जो है इस शिप की प्रेसिडेंशियल कॉलम की, उसकी ओर बढ़ रहा है INS सुमित्रा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का जो नेवी का, नौसेना के जंगी जहाज़ों का जो प्रदर्शन था, भारतीय जहाजरानी निगम के जहाज़ों का जो प्रदर्शन था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज़ उसमें शामिल थे, भारतीय तटरक्षक बल जो कि कोस्ट गार्ड एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में, उसके उन्नत जहाज़ों का भी प्रदर्शन आज इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में शामिल रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, अगर कहा जाए दो नगीने हैं विशाखापट्टनम में तो गलत नहीं होगा। पूर्वी तट पर सबसे प्राचीन शिपयार्ड है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और साथ ही विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर आर्थिक दृष्टि से भी बात की जाए, और इंडियन मैरीटाइम जोन में जो भूमिका निभाता है ये बंदरगाह, वो न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 में सिंधिया स्टीम और नेविगेशन कंपनी के अंश के रूप में परिचालित हुआ था और आज सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, और उसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। INS सावित्री शान से आगे बढ़ता हुआ प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का अंग बनते हुए आज बहुत ही शानदार अंदाज में जिसका परिचालन हुआ, और प्रेसिडेंट यॉट ने एक के बाद एक जो पोत तैनात थे
समुद्र में स्टैटिक शिप्स उनको पार किया और परंपरागत अंदाज में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अब से थोड़ी देर पहले वो मौका भी था इस फ्लीट रिव्यू का जब राष्ट्रपति महोदय ने अपना संबोधन किया और एक बार फिर से वो भरोसा मजबूत हुआ हमारे सैन्य बलों पर और एक बार फिर से भविष्य की चुनौतियों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री के शब्दों में आजादी का अमृतकाल कहते हैं, यानी आज से 25 वर्षों बाद भारत कहां होगा, किन परिस्थितियों में होगा, क्या हम अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन कर सकेंगे और भारत एक विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकेगा, जहां दुनिया भारत की तरफ आज देख रही है और इस अमृतकाल में हम अपने तमाम क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाएंगे। इसलिए आज का फ्लीट रिव्यू इतिहास का वो हिस्सा जो हमारे गौरव के इन पलों को बढ़ाता है, हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में गौरव और ऊर्जा का संचार बढ़ा देता है। और हमें यह समझना होगा कि नौसेना क्यों बेहद जरूरी है, क्यों बाकी सैन्य बलों से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे आर्थिक हितों को नौसेना न सिर्फ सुरक्षित रखता है बल्कि आश्वस्त करता है कि भारत की आर्थिक प्रगति निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय समुद्री सीमाएं जो 7,500 किलोमीटर से लंबी हैं और इसके अलावा हिंद महासागर में दुनिया के अपतटीय तेल भंडार का 40%, रणनीतिक महत्व के खनिजों का 65%, प्राकृतिक गैस का 31% भंडार पूरी दुनिया का, और इससे भी आगे बढ़कर पश्चिम एशिया से हर साल करोड़ टन तेल इस क्षेत्र से गुजरते हैं और पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। हमारी नौसेना ने एक बार फिर से उस सुरक्षा के एहसास को आगे बढ़ाया है, समृद्ध किया है कि जब तक हमारी नौसेना मौजूद है हमारे आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारी ओर आंख नहीं उठा सकता। और अब ये दृश्य आप देखें जब प्रेजेंट फ्लीट रिव्यू अपने बिल्कुल अंतिम चरण पर, राष्ट्रपति महोदय का ये प्रेजेंट यॉट अब यहां पे डॉक होगा यहां पे, और फिर से एक बार हम देखेंगे राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में जो तमाम गतिविधियां हैं वो उसके गवाह हम बनेंगे। The precise navigational skill of the captain of the warship and the navigating officer is at display. The ship will be berthed alongside in few minutes from now. As you see, the national color flying in the foreyard of the ship and also on the mainmast, indicating the President, the Supreme Commander of the Armed Forces, is at sea. The Chief of Naval Staff, the Raksha Mantri, the Commander-in-Chief of Eastern Command, and various dignitaries on board the warship of the President's yacht, now coming alongside after reviewing the fleet. The